Good morning. Welcome to our online class 11th Accountancy chapter number 1 Meaning and Objectives of Accounting. आज की क्लास से पहले हमने जो है टाइप्स और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया था, जिसमें 4 पॉइंट हमने क्लियरिफाई कर दिया हुआ था टैक्स अकाउंटिंग तक। आई होप आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 5 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसको मैं रीड कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ केयरफुली रीड करिए। द सोसाइटी प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटीज विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट एट ऑल। Hence, the business also has a responsibility to the society. There is a growing demand for reports on activities which reflects the contribution of an enterprise to the society. Social responsibility accounting is the process of identifying, measuring and communicating the contribution of a business to the society. The contribution of a business to the society consists of providing employment to underprivileged, providing financial and manpower support for public programs, environmental contribution, product safety, product durability, customer satisfaction, etc. In social responsibility accounting, techniques have been developed for the measuring the cost of these contribution and benefit of the society. आपको ये पता है किसी भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस होता है, प्रॉफिट मोटिव तो उसका होता है, लेकिन कुछ लायबिलिटीज भी होती हैं जो सोसाइटी के लिए होती हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पे टोटली फोकस इसी बात पर रहता है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। देखते हैं, अकाउंटिंग इज ऑफन रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस सिंस द मेन एम ऑफ ए लैंग्वेज इज टू सर्व एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग कम्युनिकेट्स द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज टू मैनेजमेंट, ऑनर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट, एक्सेट्रा। Accounting as an information system is a process of identifying, measuring, recording, summarizing and communicating the information about business to interested users of such information. Different groups of persons have vested interests in a business organization. Accounting provides useful information to all these interested parties. आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन हैं और उनकी जरूरतें क्या हैं, या और पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन से ऐसे पार्टीज हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं। Accounting information is used by various groups of people who have contact with the business enterprise. They use accounting information in order to They use accounting information in order to satisfy some of their varied needs for information. These users may be classified into two groups. दो तरह के ग्रुप बने हैं, internal users and एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मीन्स ऐसे यूजर जो बिजनेस या कंपनी के इंटरनल पार्ट होते हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब जो बाहरी पार्ट हैं, लाइक इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एंड गवर्नमेंट। इंटरनल यूजर्स में आपके आ जाएंगे ऑनर्स, मैनेजमेंट। चलिए पढ़ते हैं इंटरनल यूजर्स। फर्स्ट पॉइंट हमारा है इंटरनल यूजर्स। Internal users are the person who have a direct interest in the business enterprise, such as owners and management. फर्स्ट है आपका ऑनर। ऑनर के बारे में आप जानते हैं, ऑनर मीन्स a person who thinks first
फर्स्टली टू ऑपरेट अ बिजनेस और कंपनी। सबसे पहले किसी भी कंपनी या बिजनेस को चलाने के लिए जो व्यक्ति सबसे पहले सोचता है उसी को हम जो है ऑनर कहते हैं। टोटल कंट्रोल उस बिजनेस पे ऑनर का ही होता है। ऑनर ऑनर्स और प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूट capital in the business and as such want to know about the profitability and financial soundness of the business. They also want to know whether the profit are increasing or decreasing. What are the reasons for the increase or decrease in profits? What is the value of fixed assets and floating assets of the business? All such information is provided by accounting. नेक्स्ट हमारा है इंटरनल यूजर में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। देयर नीड्स आर मेड बाय द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय पब्लिश्ड रिपोर्ट्स of the business enterprise such as profit and loss account, balance sheet and cash flow statement. However, most of the needs of management are met by unpublished internal reports which are prepared most frequently to meet the specific requirements of management. Such unpublished or internal reports provide the information relating to the cost of a product, speed of increase in the cost of production, profitability of each product, reasons for increase or decrease in sale and profit, estimates of future sales and profit, etc. Management has direct access to these unpublished or confidential reports which contain valuable information not available to external users. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हु हैव प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज बट आर नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट आर कॉल्ड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. They have no access to the internal or unpublished report of the enterprise and hence make use of external or published reports such as profit and loss account, balance sheet and cash flow statement. The external users are potential investors, creditors, lenders, employees, government, etc. नेक्स्ट हमारा है, देखिए अब बुक में यहाँ पे इस तरह से सम ऑफ द एक्सटर्नल यूजर्स एंड देयर नीड्स फॉर इंफॉर्मेशन आर गिवन बिलो। कुछ ऐसे एक्सटर्नल यूजर्स हैं जिनके बारे में नीचे दिया हुआ है, पढ़ते हैं धीरे से इसके बारे में। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स फॉर एग्जांपल दोज हु वांट टू इन्वेस्ट, ऐसे इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट नहीं किए हैं लेकिन इन्वेस्ट करना अपनी कंपनी में चाहते हैं, उसे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कहते हैं। इनके बारे में क्या कह रहा है? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स नीड इंफॉर्मेशन टू जज हाउ सेफ एंड रिवार्डिंग द प्रपोज इन्वेस्ट विल बी। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को जरूरत होती है अपने फैसले को जज करने की कि इन्वेस्ट करने में हमारा फायदा है या नुकसान है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स फॉर एग्जांपल सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। जो हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, सॉरी क्रेडिटर्स हैं, उनके बारे में देखिए। दे वांट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। दे वांट टू नो whether the amount owing them will be repaid when due and whether they should extend, maintain or restrict the credit to the enterprise. थर्ड हमारे हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स such as financial institutes. They want to judge whether their principal and the interest thereof will be repaid when due and
whether they should extend, maintain, or restrict the long-term loans to the enterprise. फोर्थ नंबर पॉइंट हमारे आते हैं एम्प्लॉयज, हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं सारे एम्प्लॉयज नीड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस टू एक्सेस द ability of a business to pay higher wages and bonuses. They may also use the financial statement accounting information to ascertain whether various amounts due to them, such as provident fund, is being deposited regularly. फिफ्थ नंबर पॉइंट हमारे टैक्स अथॉरिटीज नीड इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ऑफ income tax, goods and service tax, GST, etc. Government and their agencies need information to form policies relating to taxation, allocation of resources, and for providing subsidies, etc. गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज के बारे में फिर से पढ़ता हूँ, उसके लिए नहीं थी गाइस. गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज नीड इंफॉर्मेशन टू फॉर्म पॉलिसीज रिलेटिंग टू टैक्सेशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एक्सेट्रा. सेवंथ नंबर पॉइंट है हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स सच एज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप्स. दे नीड इंफॉर्मेशन on the impact of environment and the step taken by the enterprise for protection of environment. 8 नंबर पॉइंट हमारे पब्लिक, हमारे एक्सटर्नल यूजर है पब्लिक के बारे में देखते हैं क्या है. एन एंटरप्राइज अफेक्ट द पब्लिक इन ए वैरायटी ऑफ वेज. कई तरीके से पब्लिक को इफेक्ट करती है एंटरप्राइज, सच एज ए प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी देकर के, provider of amenities in the locality, and being the customer to local supplier. Hence public at large is interested in knowing the future plan of the enterprise. इस तरह से पब्लिक को इंटरेस्ट होता है उसके फ्यूचर प्लान्स में किसी भी एंटरप्राइज के. नेक्स्ट है कंपटीटर्स आप जानते हैं. दे वांट इंफॉर्मेशन ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ्स and weakness of the enterprise and for making comparisons. As an information system, the accounting process provides information to all the users whether inside or outside. एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह से अकाउंटिंग प्रोसेस सभी तरह के यूजर्स को, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड, मीन्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं. इनसाइड और आउटसाइड द बिजनेस एंटरप्राइज. सच इंफॉर्मेशन हेल्प्स द यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इन मेकिंग वेरियस डिसीजंस. ऐसी सूचनाएं, ऐसे इंफॉर्मेशन तमाम तरह के वेरियस टाइप के डिसीजंस जो होते हैं यूजर्स के द्वारा उसे लेने में हेल्प करते हैं. द इंफॉर्मेशन इज communicated through various financial statements such as profit and loss account, balance sheet, fund flow statement, cash flow statement, etc. आपको बता दें ये दो वर्ड आते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये आपके 12th में मिलेंगे, सेकेंड ईयर के पार्ट हैं, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट ही आपको पढ़ने को मिलेगा. कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा ये आपको ग्रेजुएशन के पार्ट में मिलता है. ये होते क्या है जान लीजिए. कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा है वो किसी भी फाइनेंस, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है. अब किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में कैश की पोजीशन को जानने के लिए इसे हम बनाते हैं, तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारे इंस्टीट्यूट में फंड की पोजीशन को जानने के लिए तैयार किया जाता है. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन ईयरली बेसिस. हाउएवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर प्रिपरेशन डिपेंड्स ऑन द needs of their users. For example, the sales manager may require monthly or even weekly information of sales, whereas the needs of investors, creditors, etc. will be satisfied by annual financial statements. In order to make the information more understandable,
and meaningful. Various items of financial statements are presented in the form of ratios, percentage graph, charts, etc. Students, now your today's class is over. I hope you have understand better. The next class topic is advantage और यूजेज ऑफ अकाउंटिंग. कल जब नेक्स्ट डे यानी 28 जुलाई की हम क्लास चलाएंगे उसमें हम एडवांटेज और यूजेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. तो बेटर आपके लिए अच्छा आपके लिए होगा, बेटर आपके लिए होगा कि आप इसको एक बार केयरफुली रीड कर लीजिएगा. कोई ऑब्जेक्शंस होंगे तो हमसे आप क्वेरीज कर लें. ओके, थैंक यू.